Hello and welcome to Rise YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. Indian reservoirs can host 102 gigawatt floating solar capacity, shows report. That article was how much important for upcoming prelims 2027. If you can see, go through the PYQ question. Question number 84. Okay, this question asked in 2022 prelims. Consider the following statement. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. This question was asked in 2022. I will show you later at the end how to solve this kind of question in actual exam environment. Okay. Before solving the question, I am going to the direct context and then some important point which I discovered in this article. Already you can see that I have identified some important data facts which can be important for our upcoming prelims. Okay, so now let's go through the context at first. The National Institute of Solar Energy (NISC) has released the first national assessment report, Solar PV Potential of India Floating Solar. The report estimates that India's reservoirs can support 102 gigawatt of floating solar capacity. That is our context. Now after context, we will go through the key findings, major key findings, where some states can be are more fruitful in terms of the solar potential. Okay, now floating solar potential, total potential 102 gigawatt, and among the states which are important, top states are Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Odisha and Telangana. Okay, so these all are the important states, potential states. Now coming to the next one, the flagship project. What is the flagship project? Now ongoing flagship project Omkareshwar project, which is currently ongoing in Madhya Pradesh on the bank of the Narmada river. That is very very important. Okay, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क. ओमकारेश्वर से याद है कि एक मंदिर है कि ओमकारेश्वर टेम्पल, जो वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग है. ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में दो ही ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और एक है ओमकारेश्वर. तो ओमकारेश्वर नाम हुआ कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर. नाउ यहाँ पर एक असेसमेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर कोई भी फील्ड में, अगर कोई भी रिजर्वर में अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज है जो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटेशन द प्रोजेक्ट. लेट्स सी द क्राइटेरिया एट फर्स्ट. एज यू कैन सी 6 जियोस्पेशियल फिल्टर्स. ठीक है भाई, रिजर्वर्स लार्जर देन 10 हेक्टर होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 11 मंथ होना चाहिए, या डेप्थ अप टू 300 मीटर होना चाहिए, सोलर रेडियंस अब 4.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द रोड्स एंड सब स्टेशन होना चाहिए. तो इतने सारे फैक्टर दिया. तो लेट्स सी सम फैक्टर्स कि रिजर्वेशन लेक्स मोर देन 10 हेक्टर. ठीक है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मोर देन 11 मंथ होना चाहिए, डेप्थ बिटवीन 3 to 30 मीटर में होना चाहिए, विद इन 10 किलोमीटर तो रोड्स एंड सब स्टेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 20% रिजर्व सरफेस कवरेज टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लोबल सिनेरियो. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर जंपिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो. देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लोटिंग सोलर वर्सेस ग्राउंडेड माउंटेड सोलर. ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट आस्किंग द सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. अभी न्यू कॉन्सेप्ट है कि फ्लोटिंग सोलर, तो ग्राउंड माउंटेड जो सोलर होते हैं तो उसके साथ डिफरेंस क्या हो सकता है, कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या हो सकता है. कि लैंड एफिशिएंसी, देखिए जो लैंड एफिशिएंसी है, जो ग्राउंड माउंटेड है उसमें लैंड एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा जो रिजर्वर बेस्ड है. कि एवर्ड्स लैंड एक्विजिशन एंड रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन. ठीक है, ग्राउंड माउंटेड में मतलब अगर मान लीजिए ये एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर गवर्नमेंट चाहता है कि ये वाला जो ज़मीन है यहाँ पर हम गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट गढ़ना चाहते हैं, तो उस केसेस में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ रिजर्वर. नॉट इन द केस ऑफ रिजर्वर, क्योंकि रिजर्वर में क्या है कि ना ऑलरेडी वाटर ऑक्यूपाइड है, तो प्लेस तो वही है, बस सोलर जो पैनल है
वो प्लेस्ड होगा रिजर्वायर के ऊपर, तो प्लेस तो प्लेस भी रह जाएगा, बस यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आता है कि कॉस्ट, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो ग्राउंड माउंटेड वाला है, ग्राउंड माउंटेड में प्रोजेक्ट कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। बट फ्लोटिंग सोलर पैनल्स में जो केसेस होते हैं इस वाले पोजीशन में, ये भी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेदर देन ग्राउंड माउंटेड। ये है basic difference, you have to remember it. Now coming to the next point, global scenario, global floating scenario capacity reached 9.6 gigawatt, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं गीगावाट। एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ द ग्लोबल इंस्टॉलेशन, एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट की एग्जाम्पल्स कुछ कुछ है, जैसे कि चाइना 120 मेगावाट एट पोयांग लेक प्रोजेक्ट, ठीक है, पोयांग लेक प्रोजेक्ट। सिंगापुर में है कि तिंगजिक रिजर्वर फ्लोटिंग सोलर टेस्ट बेड, एंड नेदरलैंड में है कि यूरोप लीडिंग फ्लोटिंग सोलर मार्केट। अब आते हैं कि इंडिया, कुछ कुछ बेसिक डेटा फैक्ट्स जो अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया सोलर ग्रोथ, इंडिया का सोलर जो अभी पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल बोलना भूल होगा, ये गलत होगा, कि इंडिया को जब सोलर जो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो अभी पहुंच चुका है 150 गीगावाट, टच द माइलस्टोन 150 गीगावाट, ठीक है। 3 गीगावाट फ्रॉम 2014 टू 150 गीगावाट इन मार्च 2026। इंडिया का रैंक्स देख लेते हैं कि थर्ड इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, फोर्थ इन वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इन द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली, ठीक है। ये यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है कि एग्री फोटोवोल्टेक्स, ये मैंने कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था। एग्री फोटोवोल्टेक्स होता क्या है कि ये, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड इंटर कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखिए जो सोलर पैनल है जो फ्लोटिंग वाला है, फ्लोटिंग वाला क्या है कि एक रिजर्वर है, पानी वाला एक रिजर्वर है, वहाँ पर वहीं पर क्या हुआ कि ना जो सोलर पैनल्स है वो फ्लोटिंग सिचुएशन में है, इसी से जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये है फ्लोटिंग केस, फ्लोटिंग वाला केस। बट एग्री फोटोवोल्टिक्स क्या होता है ना, ये मान लीजिए ज़मीन है एक, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ पर एक स्टैंड है, ये वाला इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्टैंड है और हर एक स्टैंड का ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, इसको कहते हैं एग्री फोटोवोल्टाइक्स। ये भी नया कॉन्सेप्ट है और ये दिस इज मोर यूजफुल इन व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स, शेड लविंग क्रॉप्स, शेड लविंग क्रॉप्स लाइक पोटैटो, फिर वाटरमेलन, ठीक है, पम्पकिन, ये सारी जो क्रॉप्स होते हैं, तो उस टाइप खेती में ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गेहूँ हो गया, ठीक है। साइमल्टेनियस यूज ऑफ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर पावर जनरेशन, मेकानिज्म क्या था, एलिवेटेड सोलर पैनल्स कल्टिवेशन बीनीथ ऑयल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। Consider the following statements. Gujarat has the largest solar park in India. पहला स्टेटमेंट, केरल हैज़ द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखिए यूपीएससी का जो ये वाला जो ऑप्शन फ्रेमवर्क होता है, ऑप्शन फ्रेमवर्क ABCD 1 2 2 1 3 एंड 3, मतलब 2 के साथ ये वाला और 3 के साथ ये वाला, ये जो सिनेरियो होता है स्पेसिफिकली ये वाला ऑप्शन, स्पेसिफिक लेवल जो ऑप्शन फ्रेमवर्क होता है, इस टाइप का ऑप्शन फ्रेमवर्क में जो मैंने नोटिस किया वो है कि वो ये है कि जनरली ये तो 3 स्टेटमेंट हो, वहाँ से एक स्टेटमेंट ही सही होता है, 1 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ये 90% केसेस में होता है। ये मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो उसी से मैंने देखा हुई है, ठीक है। अब ये तो रहा एक डीप एनालिसिस कि ऑप्शन का अलाइनमेंट देखना, ठीक है। मैं पहले ही देखता हूँ कि ऑप्शन का अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है। उससे मेरे एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी क्रिएट होता है कि ठीक है, आप उसके बाद मैं स्टेटमेंट पे आया, तो स्टेटमेंट कैसे पढ़ना होता है कि गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, ये एक फैक्ट है, ठीक है। केरल हैज ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए ये जो 2022 में सवाल पूछा था, उस टाइम 2021 में ये वाला न्यूज़ में था, केरला हैज़ ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूज़ में आया था 2021 में।
ये था करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है 1 नंबर, ये उस टाइम मेंशन नहीं था, बट पीआईबी में था ये मेंशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेटमेंट, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पैनल इन इंडिया। अगर करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी स्ट्रांग है, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी आएगा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो बैरन लैंड है वो बहुत ही एम्पल अमाउंट पे है, और राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट भी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ना डेजर्ट एरिया है, तो राजस्थान शुड हैव द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया रादर देन गुजरात। स्पेशली नाम अगर याद है तो भडला सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, वो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, तो इसलिए एक नंबर गलत हो जाएगा, एक तो गलत, ये वाला गया। अब आएगा 2 और 3, ठीक है, 2 एंड 3 में टसल है कि अब 2 सही है या 3 सही है कि गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो अभी अभी मैंने आपको जैसे कि बोला कि केरल है जो फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये था न्यूज़ में था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अभी जो मैंने पढ़ा इधर, ठीक है, जो पढ़ा है मैंने, इससे पता चलता है कि एक चीज़ तो पता चली गया कि एक जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पता नहीं यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, किस तरह से ऑप्शन को सेट करेगा, वो उनका पर है, लेकिन हम लोगों पर एटलीस्ट जो हर रोज न्यूज़ में आ रहे हैं उनका पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, और ऑब्वियसली इसका आंसर है 2 ओनली, केरल इज ए फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये गलत है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन अलाइनमेंट से लेके स्टेटमेंट फ्रेमिंग की और बेसिक साथ साथ बेसिक नॉलेज, जैसे कि आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप घर में बैठ के क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट पढ़ लिया कि गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, जैसे ही आपने स्टेटमेंट को पढ़ा दिया गूगल पे, आप देखेंगे कि नहीं गुजरात नहीं है, इसका आएगा नाम आएगा कुछ और, साथ में कुछ आपने पीआईबी का रिसर्च कर लिया, कुछ गूगल सर्च कर लिया उसका रिसर्च, और भी कुछ प्रोमिनेंट डेटा है जैसे कि प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स है, वहीं से आप लोग कुछ सर्च कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों के होलिस्टिक आप नोट्स तैयार करते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पीवाईक्यू में आया है, तो पीवाईक्यू का रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यू रिलेटेड जो नॉलेज है आप लोगों को मिलता रहेगा, और साथ ही साथ जो इंसाइट मैं दे रहा हूँ जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है वो भी डेवलप कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपकमिंग फिल्म्स 2027 को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो यही रहा हमारा आज का आर्टिकल। हमारा इनिशिएटिव अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।